So, hi everyone. My name is Ravi. Welcome back to the React series. So, in the last video, we talked about the prop drilling, and if you don't check this out, then please go and check that one. This is the most important topic in React as well. So, in this video, we'll be discussing about the use state or basically state in the React. Why we need state and what are the use cases we need to be discussed. So go to our screen. Okay, for that, we need to set up a React project from the beginning. So you can go to the Vite and click the commands from there and paste in your terminal, but we are not going to the documentation. We are just creating like npm create feed at latest and click enter. Wait for a second, it will be ask your project name. It's like react state, and then enter. Then it will be asking for your framework, like what framework you prefer, like a Vue, React, and we need React. So you can use the down arrow to toggle that. Then React enter. Then which language you need, like TypeScript, JavaScript, or we need simple TypeScript. JavaScript. Then select that one and enter, and then go to the project folder, paste the command, and here enter, and then the second is npm install. Okay. Wait for a second. Actually, it will be installed your all the dependencies inside your package.json. If you are not aware about these things, then also go to the project structure in the playlist you refer. Okay. Okay, let wait for a second. It will be downloading. Okay. I think my internet is running slow. That's why, but usually it does not take that much of time. Yeah, our project is set up. Let's run it npm run dev. Okay, so yeah, our project is run. Let's go to and check localhost 5173. Yeah, the counter. Yeah, it will be working fine. So move ahead. So open our project, that is go to our app section. Okay, so control A, clean everything. Hope you remember the shortcuts RAFCE. Okay, or you can, if you don't uh, refer to the arrow function, then you can use the normal function RFCE. Okay, so basically, we can understand this in a counter app. So let's create something like if h1, and we need to display the counter. Let a variable count is equal to 0. Okay, so there let's create another one, that is a button like increment. Okay, and create a handler like function handle increment, and inside that we need to uh, uh, first console the data, clg, then count, and then count plus plus. Okay, will it look like राइट? ओके, मतलब ये देखने में तो सही लग रहा है कि हाँ ये चल जाएगा, तो यहाँ पे भी उसको दे देते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हैंडल इंक्रीमेंट कंट्रोल एस सेव. सो गो टू द स्क्रीन. या सो अल्थ्रो ये जैसे क्यों आ रहा है? ओके, लेट देम
no, so go to the inspect. Okay, go to console. If I'm clicking the increment, look carefully in our UI. Look, if I'm clicking on, yeah, the count is 0. If I'm clicking on, the in the console print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But look our UI still the same result, that is 0. Okay, but why the issue? What is the issue actually here? Actually, the issue is that React does not track the general or normal variables. ये React क्या करता है कि जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो उसको ट्रैक ही नहीं कर रहा है। कि जब ट्रैक ही नहीं कर रहा है तो उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो तो रेंडर ही नहीं करेगा ना। सो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए React के पास एक स्टेट होता है। ठीक है, स्टेट क्या होता है कि स्टेट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है React का, जो क्या करता है कि जो वो इंफॉर्मेशन है उसका वैल्यू को वो सेव करता है। ठीक है, और जब भी हम उसको चेंज करते हैं, मतलब जब भी उस इंफॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस होता है तो रिएक्ट क्या करता है कि जो वो भी जो कंपोनेंट होता है वो उसको री रेंडर कर लेता है। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि रिएक्ट के पास एक स्टेट होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब भी उस इंफॉर्मेशन में कुछ भी चेंजेस होता है तो रिएक्ट क्या करता है कि उसी कंपोनेंट को री रेंडर कर लेता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो लेट्स गो टू द VS कोड। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक यूज स्टेट का एक लूप होता है जिसे हम यूज करेंगे। ठीक है, यूज स्टेट क्या होता है? यूज यूज स्टेट एक रिएक्ट का हुक होता है जो क्या करता है कि हमें फंक्शनल कंपोनेंट में रिएक्ट की स्टेट को यूज करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, मतलब पहले स्टेट ओनली बी एप्लीकेबल ऑन द क्लास कंपोनेंट्स। Okay, but due to the hooks, we are able to use the states in functional component as well. So basically, if I'm talking about the hooks, hooks are nothing but the special functions in React that allow us to use the React features like state and life cycles. ठीक है, सो उसे भी रिएक्ट की हुक के लिए भी कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सो लाइक कि जो हुक्स होते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं, वो क्लास कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरा ये है कि उसको हम अपने फंक्शनल जो कंपोनेंट है उसको हम अपने टॉप लेयर में ही लिखेंगे। उसको हम कहीं लूप के अंदर या कहीं कंडीशनल के अंदर नहीं लिखेंगे। और तीसरा ये है कि हम अपने खुद का भी हुक्स बना सकते हैं जरूरत पड़ा तो। ठीक है, हम आगे भी सीखेंगे उसको कि कैसे बनाते हैं कस्टम हुक्स। Okay, so for that, let's delete everything and use the use state. Okay, for that, use const, then arrow, and use state. Make sure it's camel case, and the use state is coming from the React. Okay, if not visible, I am just allow a moment. Yeah, I think it is visible. ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। Yeah. So look, the use state is coming from the React. It will be a named import. Uh, Everything will aware about the named import and export. Okay. So basically इसमें क्या होता है कि ये यूज स्टेट, ये इसमें हम जो होता है इनिशियल वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, आप इसमें कुछ भी पास पास कर सकते हो, एक array भी पास कर सकते हो, इवन ऑब्जेक्ट, एनी स्ट्रिंग, और as your requirement you can pass any kind of data. Okay, so for now we are passing 0 because we are creating a counter application, so we need a number. So for now we are passing 0. So here we are passing two things, that is our initial state. Okay, so initial state means कि हमारे करंट स्टेट का जो वैल्यू होगा वो किस में रहेगा, वो होगा एक काउंट में। ठीक है, दूसरा होता है सेट काउंट। ठीक है, ये क्या होता है कि ये एक सेट काउंटर एक फंक्शन होता है जो इस स्टेट की जो वैल्यू है उसको हम चेंज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो सिंटैक्स है इसको आप थोड़ा यूज करना, मतलब याद करना पड़ेगा, बट
इतना भी मुश्किल नहीं है, 2-3 बार यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, डोंट नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग, यू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। ये जो क्या होते हैं इसको, जो सिंटैक्स होते हैं ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मिल जाएगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बट द थिंग्स इज कि उसे उसे आपको सही तरह से यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये तो एक आरएडी स्ट्रक्चर हो गया जिसमें दो चीज पास होते हैं। फर्स्ट होता है कि स्टेट का जो करंट होता है उसका वैल्यू यहाँ जाएगा, और दूसरा एक फंक्शन होता है सेटर फंक्शन। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस जो करंट की जो स्टेट की जो वैल्यू है उसे हम अपडेट करेंगे। और यहाँ पे आता है आपका इनिशियल वैल्यू, कि उस करंट का जो स्टेट का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा। एक array रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और एक स्ट्रिंग रहेगा, और एक नंबर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है। सो अब चलते हैं दूसरे दूसरे पार्ट में। ठीक है। सो अब क्या करते हैं कि हम दोबारा इसको बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन ही बनाते हैं, फंक्शन हैंडल हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, और एक फंक्शन हो गया। अब हम किसका यूज करेंगे, जबकि हमारे पास एक सेटर का फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उसी का यूज करते हैं। ठीक है, सो सेट काउंट, और इसमें हम पास करेंगे कि क्या मतलब जो करंट का होता है, जो करंट स्टेट का वैल्यू होता है वो चेंज होगा, तो कैसे चेंज होगा ना, हम करेंगे एक से चेंज होगा, काउंट +1। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं, रिफ्रेश वंस, इफ आई एम क्लिकिंग the increment button, it will be increments. Look at that one. First looking 12, then 13, 14, 15. Okay, that means it will be working fine. But let's implement one, that is decrement. Okay, it's like button one is decrement, and add one on click like handle decrement. Okay, so for function handle decrement, okay, and use the setter method, set count, and count एक से डिक्रीज कर दो, count is decreased by 1, so go to screen। और फिलहाल के लिए इसको तो बंद कर सकते हैं ना, बट पता नहीं ये बीच में क्यों नहीं आ रहा। ओके, विल बी फिक्स इट लेटर। Okay, let go here and will increase by 11. Let decrease it 1, 10. It will be decreased correctly. But look, there it will be the value will be going to minus as well. You know, so how to stop them to going to the minus? So for that, there is a property inside the button as well, that is disabled. Okay, so ये क्या करता है, इसमें हम एक वैल्यू पास कर देंगे। इट्स लाइक काउंट जब भी 0 होगा तो बटन क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। ओके, सो कंट्रोल एस एंड गो टू द ब्राउजर, रिफ्रेश वंस। ओके, look, the value is 0, so that the button is disabled. If I'm increased by some value, then it will be able to clickable. Okay, look, the value is 0, but the button is disabled. If I'm clicking, then nothing will be happen. So can we implement like a reset button? Yeah, let's go and implement that one. Okay. Uh, if I'm adding a reset button in the middle, then button or like a reset on click, handle handle reset. So write the function handle reset. Inside that we can pass the set count as 0, कि ये क्या करेगा कि जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है 0, ये वहां पे फिर आ जाएगा।
no, it will be comes to a default value. Okay, so let's go increment some value and then click the reset button. It will be comes to the 0. I'm decreasing, it will be not working. I'm again increasing and then decrease by 1. It will be working, comes to 0, nothing will be happen. Okay, so it might be confusing actually. Yeah. So, low actually. So, it is so some of the peoples are like confusing that why we are passing that functions like that. Why we are not calling that function like this. You know कि कुछ लोगों को तो ये कंफ्यूजन हुआ कि हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना. सो तो इसका एक दिक्कत है कि लेट्स गो फर्स्ट इफ आई एम कंट्रोल से go to the browser section. Look, nothing will be rendered. Why? Let's go to the console. Control Shift I. Okay, look, there is too many render. React limit the number of the renders to prevent an infinite loop. So इससे क्या होता है कि जो भी कि जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट फंक्शन को लो वहीं पे कॉल कर रहे हैं कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो उससे क्या होता है रिएक्ट क्या करता है कि एवरी रेंडर पे वो फंक्शन को कॉल करता है और उसकी वैल्यू को पास करता है बटन में, है ना. सो ये देखो ये यहाँ पे हमने क्या किया फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर दिया. तो जब हमने फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है तो रिएक्ट क्या करेगा कि पहले रेंडर होने से पहले इस फंक्शन को कॉल करेगा. ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ है, इधर है. ये फंक्शन जब इधर है तो फिर क्या करेगा कि फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पे पास करेगा, है ना. तो जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या होगा पहली बार में अनडिफाइंड होगा, है ना. तो जब अनडिफाइंड होगा, जब बटन के पास अनडिफाइंड का कुछ वैल्यू होगा तो वो क्या करेगा, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा. तो इसीलिए वो इन्फानाइट लूप में फंस गया है. ठीक है, वो ऐसे चलता रहेगा, है ना. तो इसको मतलब और सभी मतलब इन्फानाइट भी नहीं होगा तो ऐसा होता है कि ये कभी कभी बटन क्लिक क्लिक मतलब बटन पे जब क्लिक करेंगे तब कुछ होगा भी नहीं, एक्शन कुछ होगा नहीं, ना ही ना ही इंक्रीज होगा, ना ही कुछ और फंक्शनैलिटी होगा, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू को पास कर रहा है. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फंक्शन की रेफरेंस को पास करते हैं, है ना. तो ये क्या कर सके कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो अभी तब जाके रिएक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा. उससे पहले ये कॉल उससे पहले ये फंक्शन को रिएक्ट कॉल ही नहीं करेगा. समझ गए सब लोग. ये हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, हम उसको ऐसे क्यों नहीं लिखते, है ना. होप यू गॉट द आइडिया. या so there is like one more thing there is if we like हम ऐसे तो नहीं लिख सकते तो फिर हम एक आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, है ना. so for that we are using arrow functions. so if I am not writing that हम इस जो हैंडल रीसेट है हम वहाँ पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं उसको. ठीक है, हम क्या करते हैं एक एरो फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे हमारे सेट काउंट को कॉल करेंगे और उसका वैल्यू क्या करेंगे हम 0. ठीक है, तो इससे क्या करेगा कि कि इससे ये फंक्शन जो होगा वो मल्टीपल टाइम्स और इमीडिएटली कॉल नहीं होगा. और दूसरा क्या होगा कि ये फंक्शन मतलब ये फंक्शन रन करेगा जब भी हम क्लिक करेंगे और आर्गुमेंट के साथ. ओके, लाइक द फंक्शन विल रन ऑन द क्लिक with the with passing the arguments. Okay, if I'm control save it, go to the browser, uh, refresh once. Yeah, the error will be gone. If I'm clicking the increase button, it will be increased. If I'm clicking the reset button, it will be also working. Okay, so if you understand from sorry तो आप इतने तक समझ गए. ठीक है, सो अब दूसरा आता है ये कि लाइक द VS कोड. ठीक है, दूसरा ये होता है कि लाइक हम यहाँ पे सेट काउंट को अ, 2 बार और लिख लेते हैं, ठीक है ना.
या कंट्रोल एस। सो मतलब ये इतने बार लिखने से बेहतर है हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। फॉर नाउ योर कर्सर इज टू बी हियर एंड देन क्लिक अल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो। ओके, अब जितना चाहो उतना कॉपी कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं, बट हम चार ही रखते हैं ना। 1 2 3 4 कंट्रोल सेव। सो कैन यू गेस व्हाट इज द आंसर? क्या मैं एक बार क्लिक करने से वैल्यू 4 तक हो जाएगा, मतलब एक बार में 4 हो जाएगा क्या क्लिक करने से? व्हाट डू यू थिंक? लेट्स गो। इफ आई एम क्लिकिंग, पहले थोड़ा रिप्लेस कर लेते हैं। या इफ आई एम क्लिकिंग 1 2 3 4, लुक 5 6, वाई तो ये एक बार में 4 इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, जबकि हम यहाँ पे तो 4 टाइम लिखे हैं ना, कि हम यहाँ पे 4 टाइम लिखे हैं कि ये 4 टाइम क्लिक हो जाए। क्योंकि रिएक्ट क्या करता है कि वो जब भी सेट काउंट को कॉल करता है, तो तब ये क्या करता है कि जो रिसेंट रेंडर है ना, रिसेंट रेंडर है उसका वैल्यू को वही अपडेट करता है ना। तो आई एम गोइंग टू ब्राउजर रिफ्रेश वंस, द वैल्यू इज 0 फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, इफ आई एम क्लिकिंग the increment button first time, then it will be 1. Why? Because when basically the React first check the render, the current render value is 0, and for now the setter methods are updating the uh, current state value। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि 0 से 1 होता है, तो ये उसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेप को पास करते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सबको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सेट काउंट, इसमें हम एक प्रीवियस वैल्यू को पास करते हैं। फॉर नाउ वी कैन प्रीवियस प्रेव लिख लेते हैं, प्रेव, एंड यूर पास समथिंग लाइक प्रेव +1। ठीक है, इसको 2 3 2 4 बार कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एंड एरो से, एंड देन गो टू द ब्राउजर and refresh once. If I am clicking 4, then 8, 12, 16 ना, तो ये क्या होता है कि ये मल्टीपुल, जब भी आपको कोई मल्टीपल ऐसे अपडेट करना होता है, तो ये प्रीवियस वैल्यू आपको देना पड़ता है। कि ये क्या करता है कि ये मल्टीपल टाइम रिएक्ट की जो रेंडर होता है उसे ये कॉल करता है, फिर जो करंट वैल्यू होता है ना, तो उसके साथ उसको चेंज करता है। ठीक है ना, ये प्रीवियस वैल्यू के साथ काम करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, मतलब आपको एक बार अपडेट करना है एक ही इवेंट पे तो ठीक है, ये चलेगा। मतलब लाइक मैं एक बार क्लिक करूं तो 1 पे इंक्रीमेंट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये सब नहीं करना, आपको बस सिंपल लिखना है और काउंट +1 कर देना है ना। तो आपको क्या करना है कि एक ही इवेंट पे, मतलब फर्स्ट मतलब एक ही इवेंट पे एक ही बार इंक्रीमेंट करना है। पर जब आपको बैच इंक्रीमेंट करना हो या बैच में कुछ काम करना हो, ठीक है, लाइक कि हम एक ही बार में 4 को इंक्रीमेंट करेंगे, तो तभी हमें क्या करना है, इस प्रेव वैल्यू को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब क्या होता है कि ये प्रेव वैल्यू के साथ ही ये उसको लेके अपडेट कर देगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड फॉर नाउ। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि जो स्टेट होता है वो किस प्रॉब्लम को काउंटर करता है, कि जो कंपोनेंट होता है उसमें उसका जो खुद का डेटा होता है उसे हम कैसे मैनिपुलेट करें, ठीक है ना, उसको स्टोर कैसे करें, उसको अपडेट कैसे करें। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि जो जो फंक्शन होते हैं यहाँ पे, जो ऑन क्लिक पे जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग कॉल क्यों नहीं करते, उसका रेफरेंस क्यों देते हैं, है ना, ये समझ गए। तीसरा हमने ये देखा कि बैच अपडेट कैसे करें, है ना, कि हमें एक साथ में मतलब एक ही इवेंट पे 3 या 4 बार इंक्रीमेंट करना है, वो कैसे करें। ठीक है, सो इतना तक आप लोग समझ गए, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्ट की टॉपिक में। कुछ नया सा देखेंगे, कुछ नया यूज स्टेट और वर्चुअल डॉम ऐसा कुछ देखेंगे। तो फॉर नाउ कीप कीप साइनिंग and happy coding. So make sure to subscribe and don't forget to like. Okay, so that's all. Thank you guys.